Hi everybody, welcome back to my another IELTS speaking video. My name is Arun, vashisht, and today once again I am back with another part 3 questions. Today in this video, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ part 3 questions related to cue card. Describe an unforgettable bike trip. कोई unforgettable bike trip आपने किया हो, उससे related part 3 questions के sample answers इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ. बहुत मेहनत से मैंने sample answers तैयार किए हैं और उम्मीद करता हूं कि आज के ये सैंपल आंसर्स देखने के बाद अगर आपको ये पार्ट 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, then yes, I can guarantee that you are going to score 7+ band score. And if you are a candidate of a general training, then this video can be really an advantageous for you. So if you are new to my channel, do not forget to subscribe because I'll be coming up with more speaking videos like today's video. So let's watch today's part 3 questions related to cue card. Describe an unforgettable bike trip. We have the first question. Do you think cycling is a good way to get exercise? Okay, answer is absolutely yes. I'm pretty sure that cycling helps us get in shape. On top of that, everybody can afford it. To be more precise, riding a bicycle also sharpens our memory as well as improves our brain's performance. Therefore, I firmly believe cycling is a better way to exercise. जिस क्वेश्चन का आंसर आपको yes में शुरू करना हो, सो आप उस आंसर को शुरू कर सकते हैं absolutely yes. ये ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है जब आप यूज करते हैं absolutely yes. सिंपल yes बोलने की जगह पर अगर आपको 7+ band score चाहिए, खास तौर पर अगर आप जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं, so try to use absolutely yes जब भी आपको yes बोलना हो. I'm pretty sure. When you say I'm pretty sure, this means कि आप 100% sure हैं. On top of that, जब आप use करते हैं, this means कि इसके अलावा मैं कुछ और mention करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. On top of that, if you say that, sir, I watch your videos in the morning. On top of that, I always improve my vocabulary, my phrases, language, everything, and I feel confident after watching your videos. On top of that, comments करके जरूर बताएं. On top of that को use करके अपने खुद के examples जरूर लिखें comments में. Okay, to be more precise, जब आप use करते हैं to be more precise कि अगर और थोड़ा मैं खुल के बताऊं, to be more precise, you say that, sir, I watch your videos and I get confidence and I become more confident. To be more precise, I feel that I'm improving my English. Okay, I feel that now easily I can score 7+ band score in IELTS speaking. To be more precise, I firmly believe, जब आप बोलते हैं I firmly believe, this means that you strongly believe something. Okay, I firmly believe your videos are awesome. Tell me in the comments क्या आपको मेरी videos अच्छी लगते हैं. So please tell me in the comments. I firmly believe dash. I firmly believe your videos are dash. Second question we have. Should children learn how to ride a bicycle at school? Yes, I absolutely think they should. There is a saying, you can't teach an old dog new tricks, which means it is tricky to teach them later. This explains why pupils at primary school must be trained to ride a bicycle at school. When I was at school, we all had to participate in a cycling race. And I topped twice, if I remember rightly. Yes, I absolutely think they should. ज़्यादातर पार्ट 3 में क्वेश्चंस आपको अक्सर पूछे जाते हैं कि क्या आपको लगता है, डू यू थिंक, आपका ओपिनियन पूछा जाता है पार्ट 3 में. सो अब आंसर जब आपको बोलना है कि हाँ मुझे लगता है, यस मुझे लगता है कि मैं सोचता हूँ ये चीज़ है या ये चीज़ होनी चाहिए, सो आप उसको शुरू कर सकते हैं. यस, आई एब्सोल्युटली थिंक दे शुड. राइट, अगर जैसे क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने पीछे एक वीडियो में क्वेश्चन लिया था, डू यू थिंक वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, क्या हमें और ट्रीज प्लांट करने चाहिए, सो देन आप उसको शुरू कर सकते हैं. यस, आई एब्सोल्युटली थिंक वी शुड. उसके बाद देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है, यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स. ये कहावत है कि जब आप कोई बुजुर्ग हो जाता है या किसी की एज ज्यादा हो जाती है, सो आप उसको नई नई चीजें नहीं सिखा सकते. जैसे आपने देखा होगा कि जब 30+ अगर किसी की एज हो जाए और आप उनको बोलें कि ठीक है मोबाइल चलाना सीख लो, इंटरनेट चलाना सीख लो, इस साइट को ऐसे करना है, ड्राइविंग सीख लो, तो उनको थोड़ा सा डर लगना शुरू हो जाता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है मैं ठीक हूँ. राइट, सो देन वी कैन यूज, देयर इज अ सेइंग, यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स. मीन्स छोटी उम्र में ही अगर आप चीज़ों को सीख लें तो वो बेहतर रहती हैं आपके लिए.
Tricky means difficult, okay? Pupils at primary school, बार बार children कहने की बजाय आप यूज कर सकते हैं. जिनकी एज 5 से 12 साल के बीच में है तो उनके लिए आप यूज कर सकते हैं. Pupils स्टूडेंट्स की जगह पर at primary school. Must be trained, passive है, must be trained, उनको ट्रेन होना चाहिए, right? Topped twice. Top means जब आप सबसे ऊपर आपकी पोजीशन आती है. हो सकता है आप जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, सो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स करके कि क्या आप टॉप कर रहे हैं जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, किस चीज में आप टॉप कर रहे हैं और किस चीज में आप टॉप करना चाहते हैं. जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप गांव से और आप बोलना चाहते हैं कि सर मैं गांव से बिलोंग करती हूं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, या मैं एबीसी सिटी से बिलोंग करता हूं और मैं आईएलटीएस में टॉप करना चाहती हूं, आई वांट टू टॉप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. Do people in your country often travel by bike? Generally speaking, teenagers and adolescents are into riding bikes. For instance, they tend to go to school or wherever they want to go. Additionally, elderly people are also found traveling by bicycle to parks or visiting their age mates. All in all, individuals prefer to travel by bikes in India. Generally speaking, आमतौर पर थर्ड सेक्शन में आप यूज कर सकते हैं IELTS स्पीकिंग में. जनरली स्पीकिंग कि मैं ओवरऑल मैं जनरली मतलब मैं बात कर रहा हूं. टीनेजर्स एंड एडोलसेंट्स जिनकी एज 13 से लेकर 19 साल के बीच में होती है उनको आप बोल सकते हैं. चिल्ड्रन बार बार अवॉइड करें, बार बार ना आप बोलें. चिल्ड्रन की जगह पर आप यूज कर सकते हैं टीनेजर्स एंड एडोलसेंट्स. एडिशनली जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो, एडिशनली आपको बता दो, एक कोहेसिव डिवाइस है और ये एलआर का पार्ट है, लेक्सिकल रिसोर्स. और आपको बता दूं कि 4 कैटेगरीज हैं: फ्लुएंसी, कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामर, रेंज एंड एक्यूरेसी और प्रोनाउंसिएशन. चारों में से आपको 7+ बैंड स्कोर चाहिए तो जाकर आपके 7 आएंगे. अगर एक में आपके 6.5 आ गए तो आपका स्कोर होगा 6.5. सो मेक श्योर कि आप कोहेसिव डिवाइसेस यूज जरूर करें. पीपल आर ऑल्सो फाउंड पैसिव, पाया जाता है, देखे जाते हैं. सीन भी आप यूज कर सकते हैं यहां पर. ऑल इन ऑल पार्ट 3 में आपको कंक्लूड करना भी आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को कंक्लूड करना चाहिए. ऑल इन ऑल इंडिविजुअल्स, ऑल इन ऑल अक्सर हम लोग यूज करते हैं राइटिंग में, लेकिन आपको बता दूं आप स्पीकिंग के पार्ट 3 में भी यूज कर सकते हैं ऑल इन ऑल. लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक साइकिलिंग विल बी मोर पॉपुलर इन द फ्यूचर? Speaking from personal experience, I see cycling is increasingly becoming more prominent than ever before. Having said that though, the future is uncertain, therefore I'm not 100% sure that will happen in the foreseeable future. जब आप अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. 1 या 2 क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हैं कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं या बता रही हूं. I see cycling prominent means ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. Having said that though, जब आपको but की जगह पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हैं having said that though. You say that कि सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मेरा ज्यादा बैंड स्कोर आ जाए लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में. Having said that though, but आ नहीं रहे हैं. Having said that though. फोर्सिबल फ्यूचर उस फ्यूचर को बोलते हैं जिसको आप देख सकते हैं और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है. फोर्सिबल फ्यूचर. उदाहरण के तौर पर आप बोलना चाहते हैं कि सर अगर आपकी वीडियोस मैं रोज देखूं या मैं रोज देखता रहूं या देखती रहूं, आई फील दैट आई कैन स्कोर 7+ इन अ फोर्सिबल फ्यूचर. अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, सो माय व्हाट्सएप नंबर इज ऑन द स्क्रीन 9872649530. Once again, thank you so much for watching this video. Stay tuned.